Hey everyone, again I welcome you all in my channel, that is Science Side. My name is Charu. Today we will do the second part of the video which is related to the first chapter of the science. ठीक है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन विच द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स करी थी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज दैट विल वर्क. अब है डबल डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट? कई बार हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड होते हैं एंड इन दीज आयनिक कंपाउंड there is a exchange of ions. Positive it will goes to the negative of other. तो इस तरह से होता है. For example, if we have a common reaction, this one A and X, A with the positive, it goes with the negative of other, and this positive it goes with the negative of this. So exchange हो रहा है ions का and a new substance is formed, new ionic compounds are formed. So this is known as a double displacement. बहुत easy है. आपके पास example है, this is sodium sulfate. This is sodium sulfate. It react with the barium chloride. What is this? This is barium. This is barium क्लोराइड. और बाद में क्या होगा? एक्सचेंज हो गए. क्लोराइड चला जाएगा सोडियम के साथ, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ बन गया. दिस इज सोडियम क्लोराइड and sodium chloride is your salt, and this is barium sulfate which is a white colored precipitate. These are formed in the solution. What are precipitates? PPT जो बनते हैं वो क्या चीज़ होती है? एक इनसॉल्युबल सा कंपाउंड बनना शुरू हो जाए आपका सोल्यूशन के अंदर. Solution, insoluble substance, it get formed in the solution, then it is known as a precipitate. So this reaction is known as a precipitation reaction. This is precipitation reaction. And the second one, this is a lead nitrate. What is this? This is lead nitrate, and it react with the potassium iodide. What is this? This is potassium iodide, and they react with each other. Now what happened? Lead iodide is formed. lead जो था वो react हो गया है iodide के साथ, और पोटाशियम रिएक्ट हो गया है नाइट्रेट. तो पोटाशियम नाइट्रेट बना, और इसका कैसा कलर था? इसमें येलो प्रेसिपिटेट्स बने. तो इसका मतलब दिस इज अगेन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो डबल डिस्प्लेसमेंट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको दो देखने को मिली है. अलग से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल. तो दे देना. सोडियम सल्फेट वाली लर्न करना बहुत इजी तो है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? व्हाट इज एक्सोथर्मिक? वेरी इजी. एक्सो मतलब देयर इज अ रिलीज ऑफ व्हाट? देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट, एनर्जी, हाई टेम्परेचर वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. किसी किसी रिएक्शन में किसी में हीट रिलीज होते हुए दिखेगी. सो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर इन दैट प्रोडक्ट साइड हमें देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, whenever there is a burning of natural gas, this one, burning of methane, that is natural gas is there. After burning we will get carbon dioxide as a gas and water vapors as a gas plus lot of energy or heat is released. है ना, यही बोलेंगे ना, burning of natural. इसके अलावा आपने वो रिएक्शन करी थी क्विक लाइम वाली, CaO plus H2O. whenever you add these two, there is a formation of a calcium hydroxide, that is slaked lime. What is this? This is quick lime. It react with water, it forms slaked lime, and we observe that there is a release of heat. यहाँ पे heat release हुई. So this is also an exothermic reaction. We have a respiration in our body. What is respiration? कि यहाँ पे हमारे पास था ग्लूकोज. ग्लूकोज ने ऑक्सीजन ली कहाँ से? ये प्रेजेंट थी बॉडी के सेल्स में. एंड दीज ऑक्सीजन व्हेन दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वी एक्सहेल and the water, and lot of energy is produced in this reaction in the body. lot of energy is produced जिससे हम ठीक है काम करते हैं. तो this is respiration. So this is exothermic. Exothermic in which the heat is evolved, energy is evolved, is known as a exothermic reaction. Okay. And endothermic opposite. endo मतलब अंदर जा रही है, एंडो अंदर जा रही है, मतलब द हीट एनर्जी इज यूज्ड, और एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट
और इलेक्ट्रिसिटी, या तो किसी रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करवा रहे हो, किसी रिएक्शन को आप हीट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, या किसी रिएक्शन को आप लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तब उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी पीछे देखना, हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फेट जो है उसको डिकम्पोज करवाना है, तो मैं हीट की प्रेजेंस में उस रिएक्शन को करूंगी, तब मेरे पास जो है फेरिक ऑक्साइड निकलेगा प्लस SO2 गैस, SO3 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने करी थी, इट यूज अ हीट to decompose this material, I require heat, so this is endothermic reaction, जिसमें हीट की जरूरत पड़ रही है, लाइट की जरूरत पड़ रही है, सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आपने पानी को तोड़ना है, H2O को ब्रेक करना है, यहाँ लिख के दे रही हूँ, देखिए H2O को आप ब्रेक करना चाहते हैं, यू यूज इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर निकल गया और ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस रिएक्शन से बाहर है। सो दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ, तो दिस इज अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हियर वन मोर एग्जाम्पल इज रिटन, AgCl सिल्वर क्लोराइड व्हेनेवर इट इज टेकन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होता है, ग्रे कलर का सिल्वर ग्रेश कलर का हमें दिखना शुरू हो जाता है वॉच ग्लास में, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को ले लेते हैं, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, तो अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको ग्रे कलर का सिल्वर जो है वो देखने को मिलेगा, क्लोरीन गैस की फॉर्म में इवॉल्व आउट हो जाएगी, तो सिल्वर बना है लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच द energy is used in the form of heat or light or sunlight, which is known as endothermic. So now next is oxidation. What is oxidation? oxy इसका मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब आपका यूज होता है रिएक्शन में या किसी में इन्वॉल्व हो गया, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, मतलब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लग गया, ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन वर्ड ही बता रहा है कि देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। सो जिसमें एडिशन होगा ये ऐड अप हो गया, इसका मतलब मैग्नीशियम का यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम अक्कर, मैग्नीशियम अक्कर, ठीक है, Mg। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या डेफिनेशन होगी। रिडक्शन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को तो हम रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, लेकिन एक और चीज ऐड हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है या इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ये दो चीज यहाँ पे रिमूव हो रही हैं। कैसे याद रखोगे, ऑक्सीडेशन एक तो वर्ड खुद बता रहा है कि ऑक्सीजन ऐड होगी, लेकिन ऑक्स से लॉस याद रखना वर्ड, अगर लॉस याद रहेगा तो दो चीज़ों का लॉस करवाना है बच्चे, हाइड्रोजन का एंड इलेक्ट्रॉन का। रेड यानी ऐड, तो इसमें ऐड होगा इससे उल्टा, कौन है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड अप करवा देना है, ऑक्सीजन को आपने रिमूव करवा देना है, ठीक है। तो डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन और हाइड्रोजन इज लॉस्ट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन और ऑक्सीजन इज लॉस्ट इज नोन एज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, बर्न्ड इन एयर, देन व्हाट हैपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इट मीन इट, यहाँ पे पूरा प्रोसेस ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर था, बना क्या बाद में, कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हो गया, एड अप हो गया, उसमें ऑक्सीजन, किसी में ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बहुत आसान ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ तो टू एरोज बने हैं, इट मीन इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
दे बोथ अक्कर साइमल्टेनियसली, साथ साथ हो रहे हैं दोनों काम, तो इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? दिस रिएक्शन इज नोन एज redox reaction. What is this? Redox reaction. So now in this reaction the copper, it has a oxygen with it. After some time when the reaction occur, आपको एरो बना हुआ दिख रहा है, अकेला कॉपर है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ जाके लग गया, वाटर बन गया, तो जिससे रिमूव हो गया है उसकी क्या हुई है यहाँ पे? रिडक्शन, और हाइड्रोजन में एड अप हो गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ओके, इस रिएक्शन में देखिए जिंक किसके साथ था? ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बाद में मैंने क्या कर दिया? उसको हटा दिया, वहां से उसको यहाँ से हटा दिया, तो इसकी क्या हुई है यहाँ पे? रिडक्शन, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया है, एंड कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है, तो इसमें एडिशन हुई है ऑक्सीजन की, दिस इज ऑक्सीडेशन। सो अब तो पता चल गया होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की किसी के साथ एडिशन हो जाना, एंड रिडक्शन ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाना, हाइड्रोजन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, लेकिन ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो रिडक्शन हो रही है, इट रिड्यूसेस इसका मतलब, और ऑक्सीडेशन मतलब अगर कोई चीज़ ऑक्सीजन ऐड कर रही है तो वो ऑक्सीडाइजेस हो रही है, ठीक है। Now this is the last concept. What is corrosion? What is corrosion? The eating up of the metals. Eating up of metal. Yeah, slow degradation of the metal. Slow degradation of metals in presence of किसकी प्रेजेंस में होती है भाई? इन प्रेजेंस ऑफ, या तो ऑक्सीजन हो, या एसिडिक आपका कंटेंट हो, या मॉइस्चर हो एटमॉस्फेयर में, उस कंडीशंस में अगर आपका ये जो आयरन है इसके सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनना स्टार्ट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? इट गेट कोरोडेड। यहाँ पे आयरन को देख रहे हो आप किस तरह से रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड लगा है, तो इट गेट कोरोडेड, यहाँ पे लग गया उसको जंग, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रस्ट, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज कॉपर। आपके पास कॉपर की वायर है, कॉपर की ट्यूब है, व्हेन इट गेट कोरोडेड तो इट्स सरफेस फॉर्म ग्रीन कलर, कलर इसका ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे रेडिश ब्राउन था तो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज इट गेट कोरोडेड। एंड हियर दिस इज सिल्वर, दिस इज सिल्वर स्पून, तो व्हेन सिल्वर गेट कोरोडेड इट बिकम, कौन सा कलर आ गया? इट बिकम ब्लैक इन कलर, इसका सरफेस ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्यों है कोरोजन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आपके उस मेटल के आसपास हो, या एसिडिक आपका कंटेंट हो आसपास, तो उसकी वजह से उसको कोरोजन लगना शुरू हो जाती है। ओके, वेरी इजी। और कुछ मेथड्स हैं टू प्रिवेंट द कोरोजन। आयरन का आपके पास कुछ मटेरियल है तो आप उसको पेंट कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट गैल्वेनाइजेशन, इट शुड बी कोटेड विद द जिंक, ठीक है, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो कोरोजन को। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? ऑक्सीडेशनल स्ट्रेस, ऑक्सीडेशनल स्ट्रेस, लेकिन किसका? ऑक्सीडेशनल स्ट्रेस ऑफ ऑयल और फैट्स। जो ऑयल है या फैटी चीज़ है उसको जब भी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रखते हैं काफ़ी टाइम के बाद, इट गेट रेंसिड, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, द चेंज इन टेस्ट इज देयर, देन इट इज़ नोन एज अ रेंसिडिटी। स्पेशली जो ऑयली चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ रखा है मैंने जिसमें ऑयल में से उसको फ्राई करके मैंने बनाया है, ये चिप्स हैं ऑयल में से फ्राई करके बनाया है, तो ये जो ऑयल है ना, अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो आफ्टर सम टाइम इट बिकम रेंसिड। रेंसिड मीन उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, खराब हो जाएगा, ठीक है, और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। So we have to keep them in the airtight packets. एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, एयर टाइट पैकेट्स में रख दीजिए, ठीक है,
और इसमें क्या ऐड करना है आपने, वी हैव टू ऐड एंटीऑक्सीडेंट. व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट हियर? सम inert gas like nitrogen is used to prevent the rancidity of the material. So here we will complete our chapter. We have complete our chapter. So thank you very much and please subscribe the channel. Thank you बच्चा.